Got it. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So we have what is called the computer graphics. So what is a computer graphics? Let us try to think about it today. We will not do too much, but we do a few concepts here. Okay. So what's the basics of computer graphics? What is its application? Then we move on to the display devices. That is in your unit first. And there is a random and raster. We call them random is also called a vector. Today we talk about this also. Today we talk about this. At least this is something which you should understand. Vector graphics versus raster graphics. Okay. Then there are many more things. We'll talk about them. So computer graphics is what makes it them, computers wonderful, and it has applications, everywhere. Computer graphics has applications everywhere, right? So computer graphics is where you can put all the pictures, charts, graphs, diagrams, and many more things, such things. And it is the process of generating. You can not only generate these pictures, charts, graphs, and all, but you can manipulate them. Means you can edit them, you can do something with them, you can store them, you can display them, and many more things. Okay, so computer graphics is a full-blown subject which has everything is, today's world is dependent on computer graphics. Okay, you see movies, you see anything today, computer graphics. Without computer graphics you can do nothing. And here we are teaching without computer graphics. It was not possible to teach you like this. So whatever I'm putting this tick here, I'm writing the text, there may be pictures, there are presentations, this is all computer graphics, right? So there will be nothing you can see other than computer graphics. And the basic unit of computer graphics is the pixel, what's called the picture element. It's called the pixel. Basically graphics are of two types, either it's a vector graphics or it is a raster graphics. Anyone know the difference? What's the difference between vector graphics and raster graphics? Vector graphics versus raster graphics is the raster graphics we deal with the pixels. In a raster graphics we deal with the pixels. So what is a pixel? We divide our display screen into small square color chunks. We call them as a pixels. These things are called as a pixels. And depending upon these pixels, which pixel is being colored, you get a picture. So you get a picture because of these pixels, and against them we have what's called a bitmap. Don't worry about these things, because these things will get clearer and clearer and clearer day in and day out. So just the first day. In a bitmap, we have against these pixels the bits like zeros and ones, so that we understand which pixel we have to eliminate and which pixel we do not have to eliminate. And we make our pictures using these pixels. But in vector graphics, we do not work like these bitmaps and all, rather we have mathematical formulas. In mathematical formulas, we create a picture using a mathematical formula. Now, it seems the vector graphics is best, because in a raster graphics, there comes like this. For example, I have opened up this. I just opened this Photoshop here. Where is it coming? Let me see. It's coming on this screen, perhaps. Yeah, let me get it here. Let me get it on this screen. Okay. Now this is a girl, the Afghan girl, the famous Afghan girl, right? Okay. Control Z. Sorry. Now, if I try to zoom it, now I am zooming it. Okay, as you could see her eyes, and what you see in the screen now is the boxes, right? Can you see it? These boxes are the pixels, and this picture is basically made out of coloring these pixels with different colors. As you could see, I have zoomed it
to the full, and this thing is, by the way, is called the pixelated. Now the picture is pixelated, I can't see it properly, I can't see what is it. I'm just seeing the colors. When I zoom out, and these pixels basically do what? This I will zoom it out. Now these pixels together making color will make some sense now, and it is getting that picture, the brighter and brighter. Okay, so this picture is actually made up of coloring those small squares called as pixels, right? And if I zoom in, this picture is quality is getting worse and worse and worse. Why? Because this is getting pixelated, because I have colored the pixel. When I zoom, when I try to zoom, these pixels, because more color, when we have more pixels per inch, if we have more pixels per inch, that gives more color to it. When I zoom out, zoom in, okay, these pixels are getting far away and far away, I am getting bad quality of a picture. And this is your raster graphics. In case of vector graphics, there's a mathematical formula. For example, I have a triangle. I want to make a triangle here. Okay, I just want to make a triangle here. This is my triangle. It looks pretty good, but when I zoom, okay, the color fades. ठीक है ना, कलर फेड हो गया, क्योंकि अब जो ये पिक्सेल्स थे दूर दूर हो गए, ठीक है ना, they get no far away. But in case of vector graphics, if it was bright triangle, okay, and if you zoom to the you make it a 1 kilometer long triangle now by zooming, still it will be same, color intensity will be same. Why? Because there will be a formula who is drawing this line from this point to this point to this point. From this point, if I'm making a line, there will be a formula, line drawing formula, okay, which will draw the line for me from point A to point B. So now, even if I zoom now, the formula stays same. Formula stays same. Say, for example, it is like this. I'm saying you, one is that I am drawing a color using the pixels. Now, if I expand it, color lose ho jayega na. But now I am not drawing using the pixels. I am saying draw from this point to this point. अब जब मैंने इसको expand किया, point दूर हो गया, लेकिन formula तो same ही है ना. Draw from this point to this point. Do you understand? मैंने इस point और इस point के दरमियान line बनानी है. मैं कह रहा हूँ from point A to point B draw a line using the formula. अब मैंने point A point B दूर कर दिए, लेकिन फॉर्मूला तो वही है ना, पॉइंट ए से पॉइंट तक लाइन बनाओ. तो जो ये इतनी बना रहा था, ये इतनी भी बनाएगा उसी इंटेंसिटी की. सो वेक्टर ग्राफिक्स जो आपके हैं, जो वेक्टर ग्राफिक्स आपके हैं, वेक्टर ग्राफिक्स never gets those pixelated and faded because they are made using some mathematical formula, not pixels, individual pixels, and working on them. So उसका मतलब ये है कि अगर आपको अपने एक फोटो उठाया और आप इसका बहुत बड़ा पोस्टर बनाना चाहते हैं, जो कि आप पूरी चौक में लगाओगे, अगर आपका रास्टर ग्राफिक्स है, तो उसको जब आप इंक्रीज करोगे, वो पिक्सल दूर दूर हो जाएंगे ना, तो वो उसकी पिक्चर की क्वालिटी क्या हो जाएगी, खराब. वो पिक्चर रहेगी ही नहीं. लेकिन रास्टर जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं, वो तो फॉर्मूला से बनाते हैं चीजें. तो जब आप फॉर्मूला से चीजें बनाते हैं, सो दैट मीन्स it will be, it will not fade and all. ठीक है ना. और दूसरी बात ये है कि अगर मैंने यहाँ पे कोई लाइन बना दी, अभी आप देखो ये लाइन जो मैंने बनाई है यहाँ पे, जैसे मैं ये लाइन बनाऊंगा ऐसे, ये स्ट्रेट लाइन दिख रही है, लेकिन जब मैं इसको जूम करूंगा, now as you could see, it's not straight, it has this, कभी इधर गया है, कभी उधर गया है. कभी आप देखो इस पॉइंट पे ये दो पिक्सेल्स जो है वो इल्यूमिनेट हुए हैं, इस पे एक ही हुआ है इल्यूमिनेट, और थोड़ा सा शेडिंग हो गई बाहर में, यहाँ पे दो हो गया ऐसे.
है ना। यहाँ पे ये 2 पिक्सल्स, यहाँ पे ये वाले पिक्सल्स 2 हो गए। सो इसे एक काइंड ऑफ अ स्टेयर केस बन रहा है। इट्स कॉल्ड अ स्टेयर केस इफेक्ट। इट्स कॉल्ड एज व्हाट, स्टेयर केस इफेक्ट। यानी कि वो मैं ऐसे आपको बताऊंगा। इफ आई ओपन अप द वन नोट, मेरे पास वन नोट खुला ही था कहीं पे, शायद मैं पढ़ा रहा था उनको। Let the OneNote open. वो यहाँ पे है, इसके नीचे। OneNote कहाँ गया भाई? Where is OneNote? Yeah, here. Okay. Look at it. What I'm saying. जो पिक्सल्स है, देखिए, मुझे एक लाइन बनानी है, ठीक है। आई हैव टू मेक ए वन लाइन। दीज आर माई पिक्सल्स। These are those individual pixels. Whatever. अब जब मैं एक लाइन बना रहा हूं, फर्ज कीजिए मैंने यहां से किया लाइन, ऐसे हो गई ये लाइन, ठीक है। ये फर्ज कीजिए पिक्सल्स है वो, ठीक है ना। अब जब मुझे पिक्सल्स को कलर करना है, आई हैव टू कलर दोज पिक्सल्स व्हेन देयर इज अ लाइन। ये वाली जो लाइन है, ये सीधे इस पिक्सल के बीच में जा रही है। This line is going in between this pixel, so I will illuminate this pixel like this. I will illuminate this pixel to make a line. ठीक है। अब ये वाली जो दिख रहा है, ये वाली इसमें जा रही है, लेकिन इसमें ज्यादा जा रही है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है ना। तो मुझे ये वाला पिक्सल भी करना पड़ेगा और ये वाला पिक्सल भी करना पड़ेगा, और ये भी इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, तो ये वाला पिक्सल भी करना पड़ेगा, ये वाला पिक्सल भी करना पड़ेगा। अब ये वाला सीधे एक ही में जा रहे हैं, तो इसमें एक ही में करूंगा पिक्सल इल्यूमिनेट। ये वाला 2 में जा रही है, इसमें भी जा रही है और थोड़ी सी इसमें भी जा रही है, दोनों को करना पड़ेगा, ठीक है। और ये वाली जो है फिलहाल इसमें जा रही है, ठीक है ना। और ये वाली इसमें भी, तो इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी करना पड़ेगा कलर, ठीक है। समझ आ रही है? यानी कि जो मैं कलर कर रहा हूं, मैं इसको भी कलर कर रहा हूं, इसको भी कलर कर रहा हूं। फिर मैंने ये ऐसे किया, फिर ये ऐसे हो गया है, ठीक है, ये ऐसे हो गया है, फिर ये ऐसे। मैं पिक्सल के ऊपर दिखा रहा हूं, लेकिन जब मैं इसको जूम करूंगा, जब मैं इसको जूम आउट करूंगा, ये जूम इन करके मैं पिक्सल के ऊपर काम करूंगा, ठीक है। मैं जूम आउट करूंगा, मुझे लगेगी ये लाइन है ऐसे, ठीक है। लेकिन जब मैं जूम इन करूंगा, तो मैं देखूंगा पिक्सल्स जो मेरे पास हो रहे हैं, ये लाइन कभी इस पिक्सल में भी थोड़ी, आधी इस पिक्सल में थी, आधी इस पिक्सल में थी, तो दोनों को कलर करना पड़ेगा ना। अभी आधी इसमें थी, जो अभी हमने फोटोशॉप में देखा, यहाँ पे देखिए, इसको जूम करते हैं। आपको फोटोशॉप भी सीखना है मेरे से। ये देखो, ये 2 पिक्सल्स हुए हैं ना यहाँ पे, क्योंकि इसमें भी जा रही होगी, इसमें भी जा रही होगी, ठीक है। तो इस तरीके से एक स्टेयर केस इफेक्ट हो जाता है। इसका स्टेयर केस हमें दूर से तो दिखेगी ऐसे, लेकिन जब हम नजदीक जाएंगे, पिक्सल लेवल पे जाएंगे, तो हमें दिखेगा कि कभी पिक्सल ऊपर वाला भी करना पड़ रहा है, ये भी करना पड़ रहा है, दाएं भी करना पड़ रहा है, बाएं भी करना पड़ रहा है, क्योंकि आपकी जो ये लाइन थी, वो बिल्कुल पिक्सल्स के बीच में से नहीं जा रही है, ऐसे नहीं जा रही है, ठीक है। हर बारी ऐसे नहीं जाएगी, तो मैं इस पिक्सल को खाली करूंगा। हमें कुछ ऐसा हो रहा है कि जो मेरे पिक्सल्स है, जैसे फर्ज कीजिए ये पिक्सल्स है, ठीक है, ये कुछ, मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन अगर 45 डिग्री एंगल की होगी, वो हो जाएगी हर पिक्सल में, तो वो ठीक दिखेगी। लेकिन 45 के बाद से कर्व हो गया, तो ऐसे कुछ हो गया। तो आप देख रहे हो कि ये वाली जो लाइन है, ये यहाँ पर है, ये वाली जो कर्व है, ये इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर करूंगा। फर्ज कीजिए, ओह डैम, ये मेरे पिक्सल्स हैं और ये मेरी एक कर्व मैं डालना चाह रहा हूं, ठीक है, ऐसे। अब आप देखो यहाँ पे
इन दोनों सूरत में सिर्फ ये इस पिक्सल में, इस पिक्सल में है, लेकिन ये वाली लाइन ये हमारी इस पिक्सल में भी, इस पिक्सल में भी है। सो आई हैव टू गिव बोथ ऑफ देम। सो इससे होगा कि इससे एक स्टेयर केस जैसे बनेगा, एक स्टेयर केस जैसा बनेगा, इट्स कॉल्ड स्टेयर केस इफेक्ट। लेकिन जो आपकी रास्टर वेक्टर ग्राफिक्स होता है, क्या होता है? जो आपका वेक्टर ग्राफिक्स होता है, वेक्टर ग्राफिक्स एग्जैक्टली फॉर्मूलाज बनाती है। उसमें ये नहीं होता कि पिक्सल मेरे को करना है, ये किस पिक्सल में गया तो मैं उस पिक्सल को एलिमिनेट करूंगा, नहीं। इसमें एग्जैक्टली पिन पॉइंट होगा कि भाई ये लाइन इधर है तो इसको ही उतना ही करो, यही करो, यही करो, एंड सो ऑन। सो यानी कि आपकी ग्राफ्स बड़े क्रिस्प होंगे, उसमें कोई ये पंगा नहीं होगा स्टेयर केस एंड ऑल। किस में? वेक्टर ग्राफिक्स में। तो अब आपको ये अंदाजा होगा कि वेक्टर ग्राफिक्स इज बेटर देन व्हाट, देन द पिक्सल बेस्ड और रास्टर ग्राफिक्स। लेकिन जो भी आप चीज देखोगे, जैसे आपका डिस्प्ले डिवाइसेस है, जैसे ये मॉनिटर है, ये रास्टर ग्राफिक्स है। आपका कैमरा ले लो, वो रास्टर ग्राफिक्स है। तो आप जो भी काम करते हो वो सारा रास्टर, जबकि वेक्टर ठीक दिख रहा है, सब चीजों में वेक्टर दिख रहा है ठीक, लेकिन कर रहे हो आप रास्टर ग्राफिक्स। व्हाई सो? बिकॉज जो वेक्टर ग्राफिक्स हैं उसमें हम एडिटिंग नहीं कर सकते, उसमें हम काम नहीं कर सकते। हमें अगर एडिटिंग करनी है, इंडिविजुअल कलर्स पे काम करना है, वो हम नहीं कर सकते, रास्टर ग्राफिक्स में कर सकते हैं। इसलिए जो आपके सॉफ्टवेयर जैसे फोटोशॉप है, इट इज अ रास्टर ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर, नॉट वेक्टर ग्राफिक्स। वेक्टर ग्राफिक्स के लिए अलग होते हैं, जैसे इलस्ट्रेटर हो गया, बाकी चीजें हो गई, ठीक है, वो आपके वेक्टर ग्राफिक्स में आएंगे। ठीक है, समझ आ रही है बात? उबैद मीनस क्या दलील है, कभी आ रहा है कभी जा रहा है। सो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रास्टर ग्राफिक्स एंड वेक्टर ग्राफिक्स? Who will tell me? Yes. I just told you, ना? रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल का बना होता है, वेक्टर ग्राफिक्स पिक्सल का बना होता है। रास्टर ग्राफिक्स पिक्सल का बना होता है, राइट। व्हाट अबाउट द मैथमेटिकल फॉर्मूलाज किस में होती हैं? सोने का नहीं है, वेक्टर। वेक्टर ग्राफिक्स में मैथमेटिकल फॉर्मूलाज होंगे। जूम करके पिक्सेलेट कौन हो जाता है, क्वालिटी डिग्रेड किसकी होती है, रास्टर की या वेक्टर की? रास्टर। रास्टर ग्राफिक्स की। रास्टर की पिक्सेलेट हो जाता है ना वो, उसके वो, क्योंकि वो पिक्सेल्स का बना होता है, जब हम जूम करते हैं तो पिक्सेल्स दूर दूर भाग जाते हैं, तो फिर वो अच्छा नहीं दिखता। ठीक है ना? अच्छा जी, अब क्वालिटी पिक्चर की कैसे करेंगे हम, रास्टर ग्राफिक्स की क्वालिटी कैसे करेंगे इंक्रीज? हम ज्यादा पिक्सेल्स पर इंच डालेंगे, ठीक है, बहुत नजदीक नजदीक पिक्सल डालेंगे, ताकि अगर वो दूर भी होंगे तब भी वो उतने उतने छोटे नहीं। इसलिए आपकी जो पिक्चर क्वालिटी होती है आजकल कैमरा की, भाई ये इतने मेगापिक्सल है, ये 20 मेगापिक्सल है, ये 40, ये 80 मेगापिक्सल कैमरा है। व्हाट इज दैट? इट इज पैकिंग मोर पिक्सल्स पर इंच, ज्यादा कलर डाल रहा है, इंटेंसिटी डाल रहा है, ताकि अगर वो जूम भी करेंगे तब भी वो पिक्सलेट, जो पुराने कैमरा होते हैं या छोटे कैमरा होते हैं वो पिक्सलेट हो जाता है ना, उनके फोटोज होते हैं, उनकी क्वालिटी, क्योंकि उनकी मेगापिक्सल कम होता है, तो व्हाट इज मेगापिक्सल, तो हाउ मेनी पिक्सल्स यू आर पुटिंग पर इंच, तो वो कम जब होता है, जब आप उसको फिर एक्सपैंड करते हो ना, जूम करते हो, तो वो अच्छा नहीं दिखता क्वालिटी उसकी। लेकिन आजकल के कैमरास में क्या होता है, उसके मोर पिक्सल्स पर इंच डालते हैं, सो मोर इंटेंसिटी कलर डालते हैं, तो अगर हम जूम भी करेंगे तब भी उतने पिक्सल्स दूर भागते नहीं है, क्योंकि पर इंच आपने बहुत ज्यादा पिक्सल्स डाले हुए हैं। ठीक है, लेकिन जो रास्टर ग्राफिक वेक्टर ग्राफिक्स है, वहां तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज से होगा। ठीक है, एंड टू क्रिएट graphics and colors and all, we cannot have such mathematical formulas which can use for editing and all, so that पूरी पिक्चर, यानी कि लाइंस अगर हमें ड्रॉ करनी है या वगैरह जैसे हमें करनी है, तो उसमें तो वेक्टर ग्राफिक्स ठीक है, लेकिन अगर हमें एडिटिंग करनी है, कलर्स पे काम करनी है, जैसे सईद बतूरा का पिंक दुपट्टा आ रहा है, उसको मैं और ब्यूटीफाई करना चाहूंगा, उसके कलर देना चाहूंगा, इंटेंसिटी देना चाहूंगा मैं कलर्स की। ठीक है, तो इसके माजिद रियश सफियत, सो इसको मैं चेंज करना चाहूंगा, इसके ऊपर काम करूंगा मैं, तो वो होगा नहीं उस पे, किस पे, इन केस ऑफ योर वेक्टर ग्राफिक्स। इन रास्टर ग्राफिक्स दैट इज पॉसिबल।
That is why your Photoshop is a raster graphics, not vector graphics. Let me take one screenshot because I'm. Let me take one screenshot here because we have 1 minute only left. Open up the cameras, everybody. Yes, give me the cameras because we are left. We will continue this concept for Monday, but you will work on the. You will work on what? You will work on this raster versus vector graphics more, and make a note out of it. Samina Jafar is driving. That is nice. दबाव से सही गाड़ी नहीं लाई है. Treat तो दे देगी नहीं. Sahib, Mehrajdeen and Danish Yusuf, please open our cams so I can take one picture and send it. This is your first day. निशान क्या हो मुझे तलपोत की क्या है ये लग रहा है ये तलपोत है कि बैग है. अच्छा बैग है. देखा इसने मतलब अपना ये दिखाया फुट का है. Okay. Paint. We will continue with this concept, but keep these basic principles in your mind that you have to sit in a one place. You have to use copies and pens and notes and all those things. And because this is just 1 minute left and it will go off its own. And camera is very necessary. You have to keep it on. Do you understand? And make notes. Make notes. Do you understand? And I will uploading these videos regularly on YouTube. You can watch them again to cement your concept. But work with me. Work slowly, and you will be champions of it. लेकिन अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे ना तो आप अच्छे से सीखोगे नहीं. जब आप रेगुलर रहोगे आपके कॉन्सेप्ट्स बनते जाएंगे.